तो आज बोस्टन की टीम का ही परफॉर्मेंस है और विश्व परिवार राज्यों की सब्जेक्ट है। तो रिकॉर्डिंग शुरू किया जाए और विधिवत हम परिचय दे रहे हैं। जी प्रणाम। गायत्री महामंत्र हम लोग उच्चारण करें और आज के ऑनलाइन क्लास के लिए हम लोग ऋषि सत्ता को प्रणाम करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज का सब्जेक्ट है ऋग्वेदोपनिषद तृतीय मंडल सप्तम अध्याय और उसका विषय वस्तु है विश्व परिवार प्रकरणम। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाएं, ये भारतीय दर्शन है। पूरा विश्व एक परिवार है। इन दिनों युगांतरीय चेतना 3 रूपों में अवतरित हो रही है। वेद माता के रूप में, यानी पूरे विश्व को ज्ञानवान बनाने के लिए, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्प्रोत करने के लिए। दूसरा, देव माता के रूप में, यानी पूरे विश्व को चरित्रवान बनाने के लिए हम मानवीय गरिमा के अनुरूप पूरा विश्व जीवन जिए। और एक तीसरा है, एक और उनकी धारा बह रही है, वह है अवतरण जो भी हो रहा है वह है विश्व माता के रूप में, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये अपना देश, ये पराया देश, ये इधर के, ये उधर के, ये स्वदेशी, ये विदेशी, यह मान्यता भारतीय दर्शन में ऐसी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की है। अगले दिनों पूरा विश्व एक परिवार की तरह जिएगा, एक भाषा होगी, एक संस्कृति होगी, तब जाकर के हम इस तरीके से उस प्रकरण में हम लोग जाएंगे। तो आज का प्रथम जो योगा वाला चैप्टर है वो बोस्टन अमेरिका से पंचकोश रिसर्च सेल में जो अपने रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो आज का क्लासेज ले रहे हैं। सुबह शुरू वाले, तो हम लोग सीधे चलते हैं। मुक्ता जी वो भी साइंटिस्ट हैं, उनके पतिदेव भी साइंटिस्ट हैं। तो ये तो सीधे स्क्रीन पर आते हैं। विनोद जी आपको भी प्रणाम और मुक्ता जी आपको प्रणाम। और ऑनलाइन आप ग्लोबल स्क्रीन पर हैं, तो योगा का फॉर्मेट शुरू से आप शुरू करें। कैसे आप लोग वहां पर रेगुलर योगा क्लासेस चला रहे हैं और पंचकोश में आपकी है, ठीक है? आप अपना पूरा का पूरा अपने ढंग से उसको हैंडल करें स्क्रीन पर। नमस्ते बाबूजी और नमस्ते एवरीवन। So we will begin with warm-ups. So for that, stand on the yoga mat. Extend your arms. Extend fingers. Slowly breathe in. Breathe out. Rotate your arms from the wrist in the opposite direction. Sync with the breathing. Now elbow fold. Inhale, bend. Exhale, stretch. Inhale, bend. Exhale, stretch. Place palms on the shoulder. Inhale, shoulder rotations. Inhale, take arms up. Exhale, bring it down. Try to bring the elbows as close as possible in the front and change the direction. Inhale up, exhale down. Now neck rotation, slowly move neck. Inhale up, exhale down. In the opposite direction. When up, open your mouth. Try to take a gulp. Feel the stretch at the throat. Next, we will do Gati Yoga. So for Gati Yoga, it's like jumping jacks.
We will go one, spread arms, come back, arms above head, come back, that's one. So we are going to do 16 of those, 16 of Gati Yoga. So we'll start now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So now we are warmed up. We'll sit on the yoga mat and quickly do feet rotations in one direction, in other direction. So lie down. Bring your legs to the chest. Rotate from side to side, rock. And then rock front to back, back and forth. It gives gentle massage to the back. Feet on the ground, come into squat. Back, neck, head straight. Arms on the elbows on the knees, palms facing down, look front. Normal breathing, slowly raise up in the chair pose. Back straight, knees should not cross toes, look straight. Inhale, slowly come up. Now we will start Pragya Yoga. So we already said Gayatri Mantra. So we will directly start Pragya Yoga. The first step is Tadasana. Inhale, raise arms up and stretch. Stretch as much as you can. And then go on the toes. Stretch further. Feel the stretch from the toes to the fingertips. To balance, focus at a point in the front. Knees pulled in, stomach tucked in. Normal breathing. Hold the posture. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Feet on the ground. Arms stretched out. Bend from the waist while exhaling. With each exhale, bend further to go into Padahastasana. Try to bring your chest to the thighs. Do not bend the back. Forehead to the knees. Air completely out of the system and hold. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, bend knees and slowly sit on your heels into Vajrasana. Back, neck and head in a straight line. Palms on the knees. You can close your eyes or look in the front. Normal breathing. 5, 4, 3, 2, 1. Now inhale and slowly raise up on the knees. Extend your arms up. Bring them back and place them on your heels. Open up your chest. This is Ustrasana. Feel the arch on your back. If you cannot reach your heels, you can support your back with your hands alternatively. If you can reach your heels, it's fine. Then hold the posture. 5, 4, 3, 2,
1. Inhale, come up, interlock fingers behind, sit on the heel. Now bend from the waist. While bending, at the same time, raise arms up so that arms are perpendicular to the ground, forehead parallel to the floor. This is Yoga Mudra. Chest to the thighs. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, come up. Inhale, raise arms up. Stretch as much as you can. Look front, normal breathing into Ardha Tadasana. Again, stretch as much as you can without getting yourself hurt. Hold the posture for a few breaths. Then slowly bend from the waist to go into Shashankasana. Arms stretched out completely. And then bend, you can bend your arms from the elbows and relax. Now place your palms sideways, spread your arms, pull yourself into Bhujangasana. Now try to touch your heels together, knees to the ground, center to the ground, palms under the shoulder, look up. Feel the arch on your back. Slowly turn neck to the right, to the left, over the shoulder. Try to look at the right heel. Tiryak Bhujangasana left. Feel the stretch on the right side of the body. Hold the posture. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale to the front. Inhale, turn neck to the right over the shoulder. Try to look at the left heel. Feel the stretch on the left side of the body. This is Tiryak Bhujangasana, right? Hold the posture. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale to the front. Inhale. While exhaling, go back into Shashankasana and relax. Inhale, arms stretched out, raise up. Stretch as much as you can into Ardha Tadasana. Normal breathing, look in the front. Feel the stretch in the back, on the thighs, in the arms. Now bring the hands, palms into Namaskar Mudra. Bring the palms to the chest, onto the toes, and balance your body weight on the toes. Back, neck, and head in a straight line. This is Utkatasana. Look in the front, stay balanced. Normal breathing. Hold the posture for a few seconds. Then slowly keep the palms on the side of the feet. Bend from the waist. Bring chest to the thighs and go into Ardha Hastasana. Now slowly raise arms up. We'll go into Tadasana. Stretch onto the toes. Stretch as much as you can. Feel the stretch from the toes to the fingertips. Feel the stretch throughout the body. Hold the posture. 5, 4, 3, 2, 1. Now we will come to the standing position by chanting Om together. Om. So these are the 16 steps in the Pragya Yoga cycle, and this one cycle. You can do more if you have time. Next we will do advanced yoga poses or power asana. So the first one is a variation of a Paschimottanasana. For that we will sit
on the left. We will fold the left leg, sit on the heel of the left leg, extend the right leg. Inhale, raise arms up. Exhale, bend down. Exhale, completely. Apply Mahabandh. And inhale, hold Mahabandh. And exhale through the left. Both times we will exhale through the left nostril. We will change leg. Fold the right leg, extend left leg. Inhale, raise arm up. Exhaling, bend down from the waist. Exhale completely and apply Mahabandh. Inhale, hold and Mahabandh. Exhale through the left. Now both the legs in the front. This time we will inhale, exhale through both the nostrils to ourselves. Inhale, arms up. Bend from the waist. Exhale completely and apply Mahabandh. Inhale, Mahabandh. Exhale through the mouth to yourself. Now next we will do Dhanurasana. So lie down from the left, roll over on your stomach. Grab hold of the ankles. Inhale, go into Dhanurasana. Lift your upper body. You can rock on your center. Stretch, lift as much as you can. Hold the posture. 5, 4, 3, 2, 1. Now slowly come back onto the back. Now we will do Sarvangasana and Halasana. So for that, slowly raise your legs 90 degrees and then bend leg over the head so that it touches the floor above the head. Hands on the ground, palm facing downward. Halasana. You can apply Mahabandh. Now support your back with your hand and slowly go straight up in a straight line. This is Sarvangasana. Body weight should be on the shoulders. You can apply Mahabandh. Hold as long as it feels good. Slowly go back into Halasana. When ready to release the posture, slowly lower your legs down without any jerk. Now since we bend this way, we will bend the other way. So roll on your back into Makarasana. Arms on the ground, lift your chest. You can lift like this completely. Feel the stretch. Inhale, go into Marjariyasana. Look into the front. Exhale, arch your back. Inhale to the front. Arch your back to the front. Exhale into Shashangasana.
So these are the power yoga poses. So we will do Baddha Padmasana. Next is Baddha Padmasana. Place your heels on the thighs as high as possible. And from the back, try to grab hold of the left toe with the left hand and right toe with the right hand. Look at the nose tip. So the idea is everything is twisted. Normal breathing. Now let go of the hand. We'll do Nadi Shodhan Pranayam. For that, Nasika Mudra, the last two fingers and the thumb. With the thumb, we will close the right nostril. Inhale and exhale through left 3 times. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Now we will close the left nostril with last 2 fingers, open the right, and 3 times inhalation and exhalation through right. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Now, inhalation, deep inhalation through both the nostrils. Hold, exhalation through both. Exhalation through mouth to ourselves. Inhale, hold, exhale through the mouth to ourselves. Next, we will do Bhastrika type pranayam. For that, again, Nasika Mudra. We will close the right nostril. Exhale, quickly exhale through the left 8 times. At the 9th exhalation, we exhale completely and apply Mahabandh. Well, feel like inhaling, inhale through the same nostril. Apply Mahabandh. Exhale through the opposite. Now we will change nostrils. Exhale through right 9 times. Inhale through the same Mahabandh. Exhale through the opposite. Now we will do both the nostrils 9 times. Exhale Mahabandh. Inhale Mahabandh. And exhale through the mouth to ourselves. Next we will do Tratak. So for Tratak, extend your arm, fingers in the fist, thumb up, focus at a point on the thumb.
back straight. With slowly in with each breath, move your arm to the right. Focus at that point. Do not move your neck and don't blink. When the point become out of focus, slowly bring it back to the center. Focusing at the point. Once in the center, switch hands. Again, move the arm to the left side with each breath slowly. You can widen your eyeballs, enlarge your eyeballs, raise your eyebrows to increase focus. Again, when the point becomes defocus, slowly bring it back to the center. This is a very good exercise for the eyes and concentration of the mind before doing meditation. Once to the center, slowly take it up towards the upper left. Slowly bring it down. All the time focusing at the point to the lower. Once in the center, again switch hand. Bring it to the lower right. Slowly take it up. Keep your focus. Do not move the neck. To the upper right. Bring it to the center. Now bend your arm from the elbow and bring it closer to the face at the reading level. Once at the reading level, make a rotation slowly, all the while focusing at the point in one direction and in the opposite direction. Slowly bring it to the nose. Close your eyes. We will do Bhramari. Breath. Place on the fingers on the face and make bumblebee sound, hum sound in the head. Inhale. Hum. Thanks. Release. Rub your palms. Place it on your face. Massage your forehead. Eyes closed. Massage your cheeks. Chin. Gently massage the whole face. Massage earlobes. Pull lower earlobe down, upper earlobe up. Massage neck. Massage the whole face. And slowly open your eyes. थैंक्स, थैंक यू मुक्तादी आज की क्लास के लिए। और एक चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे अब चलते हैं क्लास के दूसरे चैप्टर में और यहाँ पर आते हैं सीधे। हाँ, ये आप बॉस्टन अमेरिका से ये गृहस्थ दंपति हैं और पंचकोश रिसर्च सेल एब्रोड इंडिया जो अपने पार्टिसिपेंट्स रिसर्च कर रहे हैं सभी गृहस्थ हैं और सभी अपने जॉब में भी हैं। इनके बच्चे भी हैं और दोनों बच्चे देखिए इनके हस्बैंड्स का उसमें आ रहा है। विनोद जी साइंटिस्ट हैं। इनके दोनों बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं और सीनियर स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। एक गृहस्थ आदर्श सदगृहस्थ का जीवन जीते हुए पूरे विश्व में कहीं भी हम भारतीय संस्कृति को अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं और एक आशा जगी है कि पूरे विश्व इस गायत्री महाविद्या कुछ स्तरीय साधना है जो पंचकोश साधना जैसे आत्म साक्षात्कार की अपने जीवन में रहते हुए अपने घर परिवार में रहते हैं, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो और पूरे विश्व में किसी भी संस्कृतियों से जुड़े हुए व्यक्ति हो अपने आत्म साक्षात्कार के क्रम में आगे बढ़ सकते हैं।
अभी हम सीधे इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इस कक्षा में आज का विषय वस्तु है प्रज्ञोपनिषद, तीसरा मंडल, 7वां अध्याय और अंतिम अध्याय है। इसके वाचन के लिए हम सीधे ओहायो यूएसए से आदरणीय किरण चावला दी हैं स्क्रीन पर। तो कृपया चिरंदी आपका स्क्रीन पर आवे और हम लोग आज शुरू करते हैं प्रज्ञोपनिषद के आज के प्रकरण को। और इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे आज के विषय वस्तु पर। और ये गृहस्थ प्रकरणम है। पहले ज्ञातव्य हो चुका है कि धौम्य ऋषि इसके अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसमें ये गृहस्थ यदि अपने आप को गृहस्थ बना ले तो गृहस्थ जीवन में रह करके ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या और युग साधना, युग दर्शन प्रतिकरणों इति उपनिषद। तो ठीक है, आज किरण दी आप स्क्रीन पर आप आए और पूरे ग्लोबल स्क्रीन पर आपका स्वागत है फिर एक बार आज के वाचन के लिए प्रज्ञोपनिषद। जी बाबूजी प्रणाम। प्रज्ञोपनिषद द्वितीय मंडल अथ सप्तम अध्याय विश्व परिवार प्रकरण। मैं ऋषि धौम्य सोचने लगी, परिवार की इतनी महत्ता बताने के कारण कहीं श्रवणकर्ताओं को यह मति भ्रम न होने लगे कि घर की चार दीवारी तक ही उनके कर्तव्य उत्तरदायित्व सीमित हैं। उतनी ही परिधि में थोड़े से लोगों के साथ आदान प्रदान करते रहने पर से यह मनुष्य लिप्त हो गया तो फिर वह सीमा बंधन का काम करेगा। मनुष्य की स्थिति कूप मंडूक जैसी ना देगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। तब कोई देश, धर्म, समाज, संस्कृति की बात सोचेगा ही नहीं। यह भ्रम यदि मेरे प्रतिपादनों से किसी को हुआ हो तो उसका निराकरण समय रहते करने की आवश्यकता है। घर परिवार को व्यायामशाला, पाठशाला के समान माना जाना चाहिए। उस छोटे क्षेत्र में उपार्जित उपलब्धियों को लोकहित में नियोजित करना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता और ईश्वर की प्रसन्नता सन्निहित है। परमेश्वर के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह संसार ही विराट ब्रह्म साकार परमेश्वर है। इसके खेत में अपनी क्षमताओं को जी खोलकर बोना चाहिए और बदले में 1000 गुने श्रेय सत्परिणामों का विश्वास रखना चाहिए। और मानव मात्र का अभीष्ट भी यही है। आज मैं ऋषि धौम्य ने विश्व परिवार का नागरिक रहने, विश्व व्यवस्था को संभालने में भाव भरे योगदान देने के लिए परामर्श प्रोत्साहन देने का निश्चय किया। इसके बिना सत्र का शिक्षण अधूरा ही रह जाता। उस अधूरेपन के कारण भ्रांति उत्पन्न होने, प्रगति उत्पन्न होने और रुक जाने का भी भय था। महर्षि धौम्य ने उपस्थित जिज्ञासुओं की ओर उन्मुख होकर गंभीर मुद्रा में मंगल में कथन आरंभ किया। महर्षि धौम्य ने कहा, पारिवारिकता को एक ऐसा समन्वय संगम समझना चाहिए जिसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के तीनों ही तत्वों का समावेश है। इसे सही रूप से अपनाने पर उपासना, साधना और आराधना के तीनों ही प्रयोजन पूर्ण होते हैं। इसके सहारे व्यक्ति का चिंतन, चरित्र और व्यवहार का स्तर ऊंचा उठता है। परिवार एक प्रत्यक्ष प्रयोगशाला है। उसमें सम्मिलित रहने वाले सदस्यों को पारिवारिकता के आदर्शों को व्यवहार रूप में समझने अपनाने का अवसर मिलता है। यही वह आदर्श है जिसे अपनाने पर परिवार के सदस्य कमल पुष्प बन विकसित होते हैं। जो उसका सूत्र संचालन करते हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव में उच्च स्तरीय परिवर्तन परिष्कार संभव होता है। इस प्रवृत्ति को अपनाकर ही मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक समर्थ, बुद्धिवान एवं प्रगतिशील बन सका। इसका प्रमुख कारण उसकी पारिवारिकता अपनाने वाली प्रवृत्ति ही है। यदि यह विशेषता ना रही होती तो उसे भी अन्य दुर्बल काय प्राणियों की तरह गई गुजरी स्थिति में जीवन व्यतीत करना पड़ता। निजी परिवार घर गृहस्थी की परिधि में सीमित रहता है। उसका आधार वंश कुटुंब है। उसकी भी अपनी महत्ता, उपयोगिता, आवश्यकता एवं जिम्मेदारी है। पर यह ना समझना चाहिए कि पारिवारिकता का आदर्श
इतने छोटे क्षेत्र में ही सीमित होकर रह जाता है, वह धर्म और दर्शन की तरह अत्यंत व्यापक है। उसकी परिधि में यह सारा चराचर संसार समा जाता है। समाज की संरचना परिवार सिद्धांत पर हुई है। राष्ट्रों का गठन भी इसी आधार पर हुआ है। यह सिद्धांत जब तक सही रूप में अपनाया जाता रहा, तब तक इस धरातल पर स्वर्गोपम सतयुगी वातावरण बना रहा। जिन मनुष्यों ने इस आदर्श को जितना समझा और व्यवहार में उतारा, वे उसी अनुपात में महान बनते चले गए। उन्हें एक से एक बढ़कर महान विभूतियां उपलब्ध होती रही। साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ स्तर के परमार्थपरायण व्यक्ति इसी भावना से ओतप्रोत होते हैं। वे सबको अपना मानते हैं। आत्मीयता की दृष्टि से जिधर देखते हैं, जिधर भी आंख पसारते हैं, तभी अपने दिखते हैं। ये आत्मभाव ही पारिवारिकता का प्रधान लक्षण है। प्रगतिशील समाजों की संरचना और संगठन विशाल परिवार के रूप में होता है। उसी आधार पर नियम अनुशासन बनते हैं। वितरण और संरक्षण का क्रम भी इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए चलता है। राष्ट्र भी व्यवस्था प्रधान समाज ही है। विश्व परिवार की मान्यता अपनाकर ही अगले दिनों नवयुग के समस्त नियम निर्धारण बनेंगी। धरातल और उसकी खनिज संपदा पर मानव समाज के समस्त सदस्यों का समान अधिकार होगा। क्षेत्रीय सीमाओं में बंधकर विश्व संपदा को किन्हीं के लिए बहुत और किन्हीं के लिए नगण्य होने का जो क्रम इन दिनों चल रहा है, वह अगले दिनों ना रहेगा। परिवार में संयुक्त संपदा होती है और उसका उपयोग सभी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकते हैं। ना कोई विशेष अधिकार जताता है, ना किसी को वंचित रहना पड़ता है। परिवार में सभी समर्थ असमर्थ अपनी क्षमता के अनुरूप श्रम करते और आवश्यकता के अनुरूप लाभ लेते हैं। पूरे परिवार का स्तर एक जैसा होता है। इनमें किसी में भी दरिद्र या संपन्न होने जैसा भेदभाव नहीं देखा जाता। संपत्ति सबकी संयुक्त होती है। विशेष अवसरों पर उसी संचय में से सबकी विशेष आवश्यकताएं भी पूरी होती रहती हैं। सामान्य निर्वाह तो सबका एक जैसा होता है। अगले दिनों यही प्रयत्न चलेगा। संपदा समाज की होगी। सभी को औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अपनाना पड़ेगा। ना कोई धनी बन सकेगा और ना निर्धन रहेगा। धरती माता के सभी पुत्र एक विशाल मानव परिवार के सदस्य बनकर एक समान सम्मान, एक समान साधन उपलब्ध करेंगे। छोटे परिवार की भाषा एवं संस्कृति एक होती है। अगले दिनों विश्व भर में एक भाषा बोली जाएगी। एक मानव संस्कृति के अनुरूप सभी का चिंतन और चरित्र ढलेगा। एक धर्म पलेगा। समस्त संसार पर मनुष्य मात्र पर लागू होने वाले एक जैसे नियम अनुशासन बनेंगे। ऐसे भेदभावों की कोई गुंजाइश ना रहेगी जिसकी आड़ में समर्थों के हाथ में विपुल सुविधा रहे और असमर्थ दुर्भाग्य को कोसते रहे और जीवन भर रोग, शोक, दुख से पीड़ित रहे। अपने अपने क्षेत्रों और वर्गों की सुविधा के लिए इन दिनों जो प्रचलन बनते और चलते हैं, वे विश्व परिवार बनने पर कहीं भी दृष्टिगोचर ना होंगे। जो भी व्यवस्था या मर्यादा बनेगी, वह धरती के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी जाति, वंश एवं लिंग के व्यक्ति के ऊपर समान रूप से लागू होगी। उसमें विशेष वर्गों के विशेष हितों का नहीं, विश्व व्यवस्था और सार्वजनीन सुविधा का ध्यान रहेगा। विश्व राष्ट्र की एक सेना रहने से काम चल जाएगा। मतभेदों को पंचायतों के माध्यम से सुलझाएगा। युद्धों को विश्व सेना रोकेगी। स्थानीय व्यवस्था भर के लिए क्षेत्रीय पुलिस से काम चल जाया करेगा। ऐसी दशा में सैन्य साधनों पर होने वाले खर्च की तनिक भी आवश्यकता न रहेगी और ये मनुष्यों का बहुत बड़ा हित होगा। उस प्रयोजनों के लिए इन दिनों जो विपुल राशि खर्च होती है, उसे बचाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सिंचाई, उद्योग, विविध उत्पादन आदि में लगाया जा सकेगा। ऐसी दशा में ना कहीं अभाव, संकट और विग्रह दृष्टिगोचर होंगे और ना मनुष्यों को दरिद्र, पतित, रुग्ण स्थिति में देखा जा सकेगा। पारिवारिकता की विधा व्यापक बनने
और सर्वत्र अपनाए जाने पर फिर सतयुग की वापसी संभव हो सकेगी। हर मनुष्य में देवताओं जैसी उत्कृष्टता के दर्शन होंगे। विपत्तियां, समस्याएं और विभीषिकाएं तो आपाधापी के कारण उत्पन्न हुई हैं। पारिवारिकता का आदर्श अपनाने पर इस अवांछनीयताओं के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रह जाएगा। महाप्रलय जैसी विनाश संकट इन दिनों पृथ्वी में सर्वत्र घुमरते गरजते दिखते हैं। उनमें से एक का भी पारिवारिकता का पवन चलते ही कहीं पता ना चलेगा। प्रातःकाल का अरुणोदय होते ही अंधकार देखते देखते ही तिरोहित हो जाता है। उसी प्रकार विश्व परिवार की भावना जगने और व्यवस्था बनने पर वैसा कोई त्रास रहेगा नहीं जो मनुष्य को खिन्न उद्विग्न करेगा और उससे गई गुजरी स्थिति में रहने के लिए विवश करे। विश्व परिवार में मात्र मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी सम्मिलित होते हैं। उनके साथ बरती जाने वाली अनीति, निर्दयता का अंत भी पारिवारिकता की भावनाओं का विस्तार होने पर ही बन पड़ेगा। विश्व कल्याण अति व्यापक मानव कल्याण की पारिवारिकता की भावना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ समझा जाना चाहिए। विश्व परिवार की, मानव परिवार की उस प्रक्रिया को व्यापक बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए जिसके साथ उज्जवल भविष्य और अजस्र सुख शांति का अवतरण अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। मैं ऋषि धौम्य का 1 सप्ताह का परिवार शिक्षण सत्र आज विधि पूर्वक समाप्त हुआ। कुंभ स्नान के लिए आए हुए लोगों का निर्धारित कार्यकाल भी पूरा हो गया। मैं ऋषि को अपने आरण्यक आश्रम में जाना था, अस्तु परम कारुणिक ऋषि को उस ज्ञान यज्ञ को समापन करने की व्यवस्था थी। श्रोताओं ने मन ही मन सत्र संयोजक ऋषि का भाव भरा अभिवंदन किया और अपने को इस अमृत वर्षा से कृतकृत्य हुआ माना। सभी का मन इस भाव श्रद्धा से भरा हुआ था कि जो सुना समझा है उसे कार्यान्वित भी करेंगे। प्रयोजन की सिद्धि तो करने से होती है। उपदेश परामर्श तो मात्र मार्गदर्शन करते और उत्साह भरने तक के काम आते हैं। कथन श्रवण भर से कुछ काम नहीं चलता। कार्य को संकल्प के बाद क्रियान्वित करना अनिवार्य है। भविष्य में ऐसा सत्र कब और कहाँ होगा, यह प्रश्न पुलकित मन से विदा लेने वाले आदर सहित पूछने लगे। ऋषि ने कहा, आप लोग पर्व आयोजनों में सम्मिलित हुआ करें। वहां प्राय ऐसे ही लोक शिक्षण की व्यवस्था रहती है, अतः सभी को वहां उत्तम लाभ प्राप्त करना चाहिए। सभी ने समापन समारोह में विशेष उत्साह दिखाया। ऋषि प्रयोजन के लिए अपने भाव भरे अनुदान भी विवल होकर प्रस्तुत किए। अभिवादन और आशीर्वाद का क्रम चला। जय घोष के उस ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया। सभी को समस्त चराचर विश्व अपनी बुद्धि में एक परिवार के रूप में उद्भुत सा होने लगा। घर लौटते हुए सभी को पेड़ पौधे तक अपने जीवन रक्षक पारिवारिक सदस्यों के समान दृष्टि गोचर होने लगे। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री धौम्य ऋषि प्रतिपादिते विश्व परिवार इति प्रकरणो नाम 7th अध्याय। जी बाबू जी। जी दीदी, हाँ जी दीदी प्रणाम। और हम लोग सभी पार्टिसिपेंट्स अब स्क्रीन पर सामने हैं। देखिए, प्रज्ञोपनिषद का 3रा मंडल परिवार निर्माण प्रकरण में उपनिषदों के श्रृंखला में अब तक से कोई भी वैसा उपनिषद नहीं था जो कि घर गृहस्थी में रह करके परिवार संचालन करते हुए वही परम पद प्राप्त कर लिया जाए, जो कभी घर परिवार छोड़ करके ऋषि लोग गहन तपश्चर्या में जा करके और उस ब्रह्मानंदम परम सुखदम तत्पदम स्थिति को प्राप्त करते थे। तो यह है युग दर्शन, युग साधना प्रकटने का, और यह ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है। ये ऋषियों को जितने समागम में सत्र में आ जाए हुए थे, उन सारे ऋषियों को यह बोधत्व हो गया
7 दिन का जो सत्र चला इसमें, तो प्रथम सत्र में जो प्रथम दिवसीय जो हुआ था उसमें महर्षि धौम्य सदगृहस्थों में सबसे शिरोमणि माने जाते हैं। और देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर कि लोग घर परिवार को आज माया मानने लगे हैं और इसके चलते एक मस्तिष्क में एक अंतर्द्वंद सा चल रहा है। अन्य साधुओं को देखते हैं जटाजूट बढ़ा करके निकल गए तो लगता है कुछ उन्हें पा लिया। एक निराशा से आती है कि शायद हमको मोक्ष नहीं मिलना है, घर गृहस्थी में रहकर कहाँ जंजाल में फंस गए। जबकि सारे ऋषिगण सदगृहस्थ हैं, सारे देवतागण जी रहे हैं जीवन, सभी सपत्नीक हैं। बार बार भगवान आया करते हैं अवतार लेकर इस धरती को सुंदर स्वर्ग बनाने के लिए गृहस्थ आश्रम का जीवन जी करके। भगवान शिव का देव परिवार का जो विग्रह हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा एक गृहस्थ जीवन में जी कर महादेव का स्थिति पहुंचने वाला, तो वो सारा ज्ञान विज्ञान लुप्त जब देखा यहाँ तब जाकर कहे कि आप भगवान बताइए कि गायत्री को संख्यान योग भी कहा गया है। गायत्री का गोत्र क्या है? संख्यान। गायत्री महाविज्ञान में जो ऋषि ने कहा है, और वहां संख्यान बताया गया है कि आयु प्राणम राम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मचसम, यानी इनके बीच में जैसे ईशावास्योपनिषद में एक सूत्र जो बोला, वहां पर वेद भगवान ने कहा है न कर्म लिप्यते नरे, यानी कर्म मनुष्यों को लिप्त नहीं करते हैं। ब्रह्मणी अध्याय कर्माणी, गीता में जो कहा है कृष्ण ने कि ब्रह्मणी अध्याय कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति यः सन लिप्यते पापेन पद पतनगांसा, यानी जो भय समा गया है कि शायद गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो हम बंधन में पड़ जाएंगे और जीवन लक्ष्य का पूरा नहीं होगा, कहा एक भ्रम है। और इसको इन्होंने सबके लिए बुद्धत्व दिया कि यदि गृहस्थ सदगृहस्थ अपने आप को बना ले तो 1000 तपस्वियों से बड़ा होता है। और इसलिए इस प्रकरण में रहा तो पहले वाले अध्याय में जो 7 बिंदु चलाए गए, पहले अध्याय में था कि गृहस्थ दिव्या प्रयोगशाले व सद्गुणों से कारणी, गृहस्थ जीवन एक दिव्य प्रयोगशाला है और इसमें घर के जो मालिक मालकिन हैं उनके वैज्ञानिक की तरह रहना पड़ता है, जिसमें से 2 शानदार कार्य करने पड़ते हैं। घर के सभी नागरिकों को, जितने भी सदस्य हैं, एक सभ्य संकल्प नागरिक करे, यानी आत्मिक विकास की प्रक्रिया करके उनको योग्य बनाया जाए और राष्ट्र को एक शानदार साधु पुत्रम जने तेजस्वी और संस्कार राष्ट्र को, तो यह गृह जीवन में हो सकता है। और दूसरा उसने था, यह प्रकरण बताई गई थी कि संततियों को जन्म देना और अपनी आत्मा का विकास करने का जितना अधिक अवसर मिलता है गृह जीवन में उतना बाहर नहीं मिलता है। तो यह दोनों काम करने के लिए थे कि आत्मिक विकास हो और एक राष्ट्र को सुयोग्य नागरिक दिया जाए। दूसरे प्रकरण में था कि आदर्श दंपति कैसे होते हैं और आदर्श दंपति में कभी कलह न हो, द्वेष न हो, घर परिवार में सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें है बहू रानी है, देवरानी है, जेठानी है, बड़े हैं, छोटे हैं, ये सब है। और सारे जो मेंबर्स आते हैं, पत्नियां आती हैं, विभिन्न घरों से आती हैं, उनके अपने अपने कल्चर्स, अपने आइडोस्फीयर होते हैं, अपने अपने मनोभूमि लेकर के आते हैं। फिर भी घर परिवार में कैसे रहा जाए कि सहकार और प्यार भरा एक घर परिवार का जीवन बन जाए तो धरती पर स्वर्ग का अवतरण होता है। ये सारी दशाओं पर चर्चा की गई और इससे बड़ा यही पारविकता आगे चल करके 7वें अध्याय में आता है। तीसरे प्रकरण में जो बात रखी गई थी तो उसमें नारी महात्म्य की चर्चा थी और उसमें साफ बताया गया था कि भारतीय दर्शन में नारियों को 4 कैडर्स में रखा गया है। एक है या तो माँ की भूमिका में रह सकती है तो माता निर्माता भवति, यदि पत्नी के रूप में है तो नास्ति भार्या समम मित्रम, और यदि बहन के रूप में है नास्ति स्वसा समान्या, और यदि पुत्री के रूप में है तो गृहेषु तनिया भूषा, घर की आभूषण है। इसलिए नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान का है। उसमें एग्जाम्पल भी दिया गया था इस प्रगोपनिषद में, राजा जनक ने कन्याओं को संस्कार देकर के और परम योगी बने, परम सन्यासी बने और गृहस्थ जीवन में रह करके भी। और रावण के ढेर सारे संततियां थे, बिना संस्कार के सिवाय नरक की आग में झोलने के कुछ नहीं कार्य किए। सगर के 60,000 वंशज सिवाय नरक की आग में झोलने कुछ नहीं किए। ये जो बात वहां पर बताई गई थी, यहाँ पर उसमें बताया गया है कि अच्छा हरित स्मृति में भी जो बात कही थी इसमें हरित ऋषि का कि 2 विधा स्त्रियां सदैव बधवश्य ब्रह्मवादिनिया, नारियों को 2 संभाग किए जाते थे, एक को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, एक को सदैव बधु। तत्र ब्रह्मवादिनिया उपनयनम, अग्निंधनम और गायत्री वाचनम, इसमें 3 थी। वेदों का प्रवचन करना, उपनयन संस्कार करना, यज्ञ विज्ञान को सीखना।
और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अग्रणी भूमिका निकाला। पाला, विश्वरा, घोषा, गोदा, जुहू, सची, सावित्री, ये सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त के सारे मंत्रों को कन्याओं ने रिसर्च किया। तो यह जो बात बनती थी कि वो इस तरीके से यह दर्शन था। अगले वाले जो प्रकरण में था उसमें से 5वें में शिशु निर्माण प्रकरण था। उसमें भी बात बताई गई थी कि कैसे हम श्रेष्ठ संतति को ले आ सकते, क्योंकि आत्मा को जन्म नहीं दिया जा सकता। न भूतवा भविता व न भो, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, तो आत्मा को हम जन्मा ही नहीं सकते। तो फिर क्या जन्म देते हैं? साधु पुत्रम जनियत, क्या उद्देश्य है? हाँ, उसके लिए एक शानदार अपने प्रॉपर्टी दे सकते हैं, अच्छे संस्कार वाले घर दे सकते हैं, एक मानवीय काया दे सकते हैं जिसमें कि शानदार आत्माएं आकर के अवतरण हो। तो यह पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए हृदय पितरो ज्ञात्वा दायित्वम पूर्णम उत्तमम जन्म संतते क्रिया व्यवस्था स्वागताय। तो शिशु निर्माण प्रकरण में था कि कैसे वरिष्ठ शानदार श्रेष्ठ आत्माओं को अपने भीतर कैसा चुंबकत्व पैदा किया जाए घर में, कि महान आत्मा उस घर को वर्ण करें, उस गर्भ को वर्ण करें और उनके लिए शानदार हम सिस्टम बना करके दें उनके, तो वो इस धरती पर शानदार कार्य कर सके। इसके लिए प्रकरण में था उसमें किस तरीके से संस्कार कराया जाए, पुष्पन संस्कार, सुनते नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ करते हुए, और उन्हें जाकर के ये भी बात बता दी गई थी कि किस तरीके से छोटे पौधे ही विशाल वृक्ष बनते हैं। आज का बालक कल का राष्ट्र नायक बनता है। बालो यो अद्यतन सहवाई भविता राष्ट्र नायक समाज ग्रामीण भिक्षा भवंत्यो यथा शुभा। इसलिए कहा उसके घर के जो गार्जियन होते हैं, एक मालिक की तरह कब खाद पानी देना है, हिंसक जानवर से रक्षा करनी है। इसका मतलब था कि कुछ संस्कार उसमें ना आने पावे, कौन सेवक है, कौन टीचर आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खेलते हैं और बच्चे के मस्तिष्क में क्या दिया जा रहा है। तो यह सूर्य की व्यवस्था बताई गई थी। बच्चों का शिक्षण सिर्फ स्कूली शिक्षा से नहीं होता है, दूर दराज घुमाने के लिए जानी चाहिए। जैसे जीवन में कमाने के लिए क्या फील्ड चुनना है, मेट्रिकुलेशन के समय में ही धर्म ऋषि ने बताया कि उसके पहले ही उसको तैयारी शुरू कर दी जाए। तो बच्चों पर हम थोपे नहीं, उसके खुद की जो क्या उसके है चेतना का कौन सा स्तर है, किस दिशा में उसकी रुचि है, उस दिशा में सूर्य की तरफ चमकाया जा सकता है। ये सारी बातें शिशु निर्माण में थी। अगले क्रम में आया था जो 6वें अध्याय में आ गया था यहाँ पर ये वृद्ध महात्मा, वृद्ध महात्म था ये शायद, हाँ 5वें में था वृद्ध महात्म, कि जो वृद्ध हो जाता है आदमी तो उसमें भी मानता है कि हम बिल्कुल बेकार हो गए। तो धर्म ऋषि ने इसमें बता दिया है कि अवॉइडेड गेस्ट बन करके घर में न रहे, अपने प्रतिभा को अर्जन तक बनाते जाएं। और चूंकि रिटायरमेंट के बाद का जीवन केवल रोते कलपते और अपने तकदीर को दोषते और मरने का दिन नहीं गिना जाए, अंतिम सांस तक रिसर्च करते हुए आदमी जाए। जब तक शरीर काम कर रहा है, रिटायरमेंट के बाद का 10 साल ऐसा होता है कि अभी आदमी का शरीर चलने बुल रहता है 70 तक से। आज के ही समय में तो अपनी प्रतिभा थोड़ा बना ले, समाज के लिए उपयोगी किए जाए। बच्चे युवा हो चुके रहते हैं, बड़े होते हैं, उनके लिए सारे दायित्व सौंपे जाए। 9 महीना समाज के लिए, 3 महीना घर को दिशा दी जा सकती है। तो ये वानप्रस्थ परंपरा आज के गृहस्थ जीवन में भी निभ सकती है, और जो बिल्कुल ही व्यवहारिक है। जब शरीर थक गया है तो कहीं गुरुकुलों में आपने ही मकान के ऊपर एक छोटा सा कक्ष बना लिया और रिसर्च करते करते और अपने आप को दें और लोगों को ज्ञान दान की बराबर बनाए रखें। अंत तक गुरु जी ने अपने जीवन शैली से बता दिया कि 80 वर्ष की आयु में भी 18 घंटा काम करते थे और लोकहित के लिए सब कुछ काम करते निकले। तो सारी महान आत्माएं की हैं। तो ये अंतिम क्षणों तक भी उन्होंने बता दिया कि जो आज के पेशेंट्स ने, अभी उस दिन हम लोग चर्चा भी किए थे, इवेंट से बता दी जो अल्जाइमर्स के पेशेंट बनते जा रहे हैं, सबका एक सुनापन अनुभव हो रहा है। ये होल लाइफ अपने जीवन को उपयोगी बनाया जा सकता है। उसके बाद वाला था जो 6वें प्रकरण में था, उसमें था सुसंस्कारिता संवर्धन, कि घर परिवार में क्या कुछ आचार संहिताएं लाइए। लाइब्रेरियां हर घर में होनी चाहिए, मांग करके पुस्तकें कब तक काम चलाएंगे। हर घर में एक लाइब्रेरी हो और वही देव प्रतिमाएं हैं और कुछ हो ना, क्योंकि महान आत्मा अगले दिन आने वाली हैं, सब पढ़ाकू सब साइंटिस्ट आने वाले होंगे, आइंस्टाइन भी रहेंगे और विवेकानंद भी होंगे और दोनों एक ही बॉडी में होंगे। तो ऐसे घर को चुनेंगे जहां पर ऐसा माहौल है कि ना। तो सुसंस्कारिता का माहौल वाला था। और आज के प्रकरण में था, ठीक ही धौम ऋषि इसमें कहे कि गृहस्थ जीवन की इतनी महत्ता यदि बता दिया तो कैसा नहीं भ्रम हो जाए कि शायद गृहस्थ जीवन में हम सिकुड़ करा जाएंगे, 2 बच्चे नाती पोते, इसमें 2 बच्चे नाती पोते से जीवन खपा दे, फिर देश धर्म संस्कृति का क्या होगा। तो पूरा विश्व अपना एक परिवार है। गायत्री माता विश्व माता है, किरणवंतो विश्वमार्ज भारतीय संस्कृति है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। पूरा धरती अपनी धरती है, सूर्य के लिए कोई मटा हुआ नहीं है। पूरा ग्लोबल विश्व की सारी संस्कृतियां अपनी संस्कृतियां हैं।
विश्व के सारे विचार अपने विचार हैं, वेदांत का कहना है। इसलिए हम पूरे विश्व के हर घटकों में जाकर पहले ऋषि लोग माइग्रेट करते थे। पुलस्त ऋषि ऑस्ट्रेलिया का फील्ड चुने थे, और उदालक ऋषि अमेरिका का क्षेत्र से कॉन्डिन कॉम्बोडिया गए थे, पराशर ऋषि जावा के जाकर गए थे। उन्होंने योग ऋषि ने सारा बता दिया कि पूरा विश्व ही, वो अलग बात है कि देवात्मा हिमालय क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के सूत्रों को खोजा गया, लेकिन विश्व संस्कृति है। तो अगले दिनों एक विश्व भाषा और विश्व संस्कृति होगी। आज ये 3 सूत्र इसमें दिखाई पड़ा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता, ये तीनों सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें साफ बता दिया गया है कि तीनों के स्पष्ट हैं। आस्तिकता कही जाती है ईश्वर के साथ साझुता का, ब्रह्म के साथ साझुता हम स्थापित करें, और आदर्शों से अटूट प्रेम हम कोई व्यक्ति करने लगता है तो उसको आस्तिक कहा जाता है, यानी अपने जीवन में अच्छाइयों के लिए समर्पण कर दे। तो यह बात बनती है, ब्रह्म साझुता की बात कही है। उत्कृष्ट चिंतन, चलते फिरते यह बात है। शरीर भले अपना है लेकिन काम ईश्वर के लिए हो रहा है, दिल अपना है, धड़क रहा है ईश्वर के लिए, अपनी भावनाएं हैं, काम कर रहा है ईश्वर के लिए। तो यह जो होती है समग्र जो समर्पण की बात आती है, तो उसमें कहा कि आस्तिकता की बात आती है। आध्यात्मिकता में रखा गया कि हम प्रखर प्रज्ञा बने। तो प्रखर प्रज्ञावान क्या होता है? चारित्रिक प्रखरता जो समझ में आ रही है। तो यदि हम अपने आप के चरित्र को धनी बनाते हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक है। इन दिनों सब कुछ बातें बन रही है। कहा कि धार्मिका धर्म आख्यंत, धार्मिक लोग धर्म ग्रंथों का पाठ करें, परम तेन सहायवचा, उसके साथ एक और भी काम करें। आचरण तो निष्ठाम स्वाम, आदर्श प्रस्तुति, अपने आचरण में भी आदर्शवत्ता का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर एक प्रतिगामिता के दिखाई पड़ता है कि सारे इन दिनों मंदिर बढ़ गए हैं, मस्जिद बढ़ गए हैं, ग्रंथ साहब के पाठ हो रहा है, पर्व त्योहार बढ़ गए, हर तीर्थ धाम में भीड़ ही भीड़, सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन शानदार पर्सनालिटी क्यों नहीं दिख रहा है? यही पर मानती कि आध्यात्मिकता गायब है। यहाँ पर आधिवित्या नहीं, चारित्रिक प्रखरता जो बात कही जा रही है इसमें हम कहाँ पर खड़े हैं, बस ये बात बनती थी। और जो धार्मिकता कहा गया है कि पहले ईश्वर के साथ साझुता बन गई, यानी अप्रोच, फिर डाइजेस्टेड चारित्रिक प्रखरता, और फिर उस योग्यता प्रखरता किस काम का? जो विश्व हित में काम ना हो। तो लोक सेवा की भावना को ही धार्मिकता कहा गया था। इन दिनों धार्मिकता माने लोग पूजा पाठ समझने लगे। इस सारे भ्रमों को इस प्रगोपनिषद में हटाया गया कि धार्मिकता से पूजा पाठ का कोई ताल्लुक नहीं, करते हैं करें, मना ही नहीं की गई है, लेकिन एक काम ये करनी चलती है कि लोक सेवा ही अपनी जो बात बनती है, इसको धार्मिकता में ऋषि लोग रखते थे कि हम शालीन व्यवहार करें, धरती को स्वर्ग बनावें। अब देखिए विश्व परिवार में बात थी कि घर ही में केवल अपने रह जाएंगे तो विश्व की कौन सोचेगा? विवेकानंद जी को नौकरी करते रह जाते तो आज हम इस स्थिति में नहीं आते। क्या गरज पड़ी थी पूरे विश्व में जाकर के भारत का ज्ञान देने का? इसको कहते हैं फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड करंट रेसिप्रोसिटी। जब तक हम अपने आप को फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाएंगे, कंप्लीट एटम नहीं बनेंगे, तो बैलेंस की तरह आसपास ही घूमते रहेंगे। ये पूरा विश्व अपना परिवार, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां, ये सब अपने परिवार के हिस्से हैं। और जिस दिन परिवर्तन आई उस दिन निश्चित रूप से अपराध तो एक दिन में बंद हो जाएगा, एक दूसरे का शोषण एक दिन में बंद हो जाता। आदमी अपराध इसलिए करता है, मानता है कि हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, उसका शोषण करेंगे, अपने ये बनेंगे। लेकिन परिवर्तक यदि भाव आ जाए, अपने बच्चों जैसे समाज के अन्य बच्चे भी लगने लगे, तो निश्चित मानिए धरती पर एक दिन में कायाकल्प दिखाई पड़ेगा। अगले दिन यही होने वाला है। यह बात ही आज के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि अपने अपने विचार इसमें प्रस्तुत करें। तो गोकुल जी भी हैं, जितने भी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो अपने अनुभव इसमें व्यक्त करें। आज के जो ये सत्र संपन्न हुआ है 7 दिवसीय का, तो इस पूरे तृतीय मंडल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न किए जा सकते हैं जी। धन्यवाद। और क्वेरी क्वेश्चन आवर अब शुरू हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, समय है पूरा का पूरा 28 मिनट समय क्वेश्चन आवर के लिए जी। अंकुर जी ने कहीं पर कोई हैंड रेज हो रहा हो तो उनके अनुभव चाहेंगे शेयर करने को, कि आप स्क्रीन पर आवें और अनुभव शेयर करें। उसको आप उसको पढ़े तो कुछ चैट में आया हुआ है बेंगलोर से जी। हाँ बाबूजी, मनीषा जी का इसमें लिखा इन्होंने कि आज के समय में हम अपने बारे में, परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं, समाज के बारे में कम और विश्व के बारे में शायद ही सोचते हैं। विश्व भावना के विकास की भावना यदि बचपन से ही बीज के रूप में पड़ जाए तो हमारे सोचने का दायरा विश्व स्तरीय हो सकता है।
आपके अनुसार Good. विद्यालयों में आपके अनुसार विद्यालयों में ऐसे क्या पाठ्यक्रम और कार्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए जिसे इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके? बाबा जी से प्रकाश। जी सुनिश्चित यही होना है। जो युग ऋषि ने इसमें कह दिया कि विश्व की एक भाषा होगी, एक संस्कृति होगी, रहन सहन होगा, एक आचार संहिता, सारे मनुष्य है माने मनुष्य है। तो इस तरीके से जो बात बनने वाली है होनी ही होनी है। और हर एक विश्व के जितने भी अपने देश हैं सभी के शिक्षाविद लोग इस पर सोचने शुरू हो गए हैं। पाठ्यक्रम में भी बदलाव हो रहे हैं, एक नई सोच बन रही है, एक नई दिशा में जा रही है। तो अगले दिनों पाठ्यक्रमों में भी आमूलचूल परिवर्तन होंगे और तेजी से हो भी रहे हैं। तकनीकी शिक्षा आधारित भी पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, संस्कार आधारित शुरू हो रही हैं। पहले के सारे विद्यालय कहलाते थे, आज शिक्षालय बन करके रह गए हैं। और उसमें जो शिक्षक की भी बहाली होती थी तो केवल पहले वाले होती थी तो वेद के आचरण करता है कि नहीं, अपने विषय में मास्टर होने के साथ साथ में उसमें श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम 2 मानदंड थे। अब वही बात अभी होने वाली है। श्रोत्रियम का मतलब होता है कि जो भी वेद के जितने भी परा विद्याएं हैं, इस फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इस सब कुछ का हमको जानकारी भी हो, लेकिन ब्रह्मनिष्ठम अपने साधना करके हमने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ हो तो अपने फैकल्टी से पढ़ाते थे। फिजिक्स वाले साइको फिजिक्स भी जानते थे, यानी फिजिक्स के माध्यम से हम आत्मा विकास कैसे करें। केमिस्ट्री वाले साइको केमिस्ट्री भी जानते थे कि रसायन सिर्फ वही नहीं है, रसायन ये भी हुआ करता है कि जिसको हम जो कि आत्मज्ञान दे लेता है वो भी एक रस है। तो इस तरीके से उसके द्वारा भी ले लेते थे। न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशन जिसको कहा है युग ऋषि ने, और वो कॉस्मिक बॉडी को भी ओपन कर डालता है। ये सारे के सारे रस हैं, आनंद भी एक रस है, रसो वैसा। इस को कौन जानेगा। इस तरीके से वो पाठ्यक्रम में बदलाव आ रहे हैं और किया जा रहा है। निश्चित होना है। आपको धन्यवाद इस तरीके तौर देने का। और ये सब कुछ सुनिश्चित रूप से होना ही होना है। अच्छा, एक और बात देखिए, इसमें आपके प्रश्न जो किया है, मदालसा ने किसी बात पर चैलेंज किया था कि जो बच्चा हमारे कोख से जन्म लेगा वो दोबारा दूसरी माँ के कोख से जन्म नहीं लेगा, नहीं लेगा। समझिए कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस था। इसका कारण क्या था? इसका मतलब कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं और उनको हम जैसा चाहे दिशा मोड़ सकते हैं, क्योंकि मूलतः आत्मा तो सबकी पवित्र है। अब रह गया कि जो सिस्टम देना है, सोचने का तरीका और बड़ी थी तो माता पिता के डीएनए और इनके सेल्स ब्रांड, हम चाहेंगे तो उनको शानदार हम दे सकते हैं प्रतिभा का। अब देखिए, जैसे ही पुरुषमन कराती थी और जब पालने में बच्चे आ जाते थे, जब आपने ठीक कहा कि बच्चों को हम लोग बचपन से ये सिखाते हैं, यदि विश्व सिखावें तो मदरसा का शिक्षण था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम तुम आयुष्मान ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी भव। और हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, पवित्र आत्मा हो। संसार के सारे माता पिता तुम्हारे माता पिता हैं। तो ये शिक्षण जहां भी चलेगा वो सारे के सारे ब्रह्मज्ञानी भी बने और एक अलर्क था वो राजर्षि भी बना, तो भी जाकर के जनक की तरह वो बिल्कुल ही मोक्ष को प्राप्त करने वाली जीवन बना। जी बहुत धन्यवाद। और ये होना चाहिए और अपने घरों में कम से कम हम लोग शुरू करें ऐसे परिवारों को जो अपने घर में करते हैं। इसी तरह परिवार को गायत्री परिवार गुरु जी ने कहा है, न कि गायत्री मंत्र का जप कर लिया और पूजा पाठ करके कहीं पर माला टांग दिया। उन्होंने कहा कि जो आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का समन्वय एकीकरण करके चलता है व्यक्ति, चाहे किसी भी संस्कृति कहीं भी पर धरती पर पल रहा हो, गायत्री परिवार है। इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति प्राण का संरक्षक है और प्राण को सदुपयोग करता है, प्राण का उन्नयन करता है और प्राण विद्या का प्रांजल करता है। जी आगे एक और आया प्रश्न, इसको पढ़ा जाए। हाँ जी बाबू जी, पद्मा जी ने एग्जाम्पल लिया है। हाँ, महाराष्ट्र से पब्लिक स्कूल का यूएसए के स्कूल से टाई अप है। यहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चों के घर रहने जाते हैं और वहाँ के यहाँ घर स्कूल आदि में आदान प्रदान हो रहा है। यही इंटर्नशिप है। ग्लोबल सिटीजन इंटरनेशनल स्कूल में तैयार हो रहे हैं। जी बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा स्टेप्स है। और देखिए यही कारण है कि यहाँ के बच्चे, भारत के बच्चे पूरे विश्व के कोने कोने में जाकर के भारतीय दर्शन ज्ञान दे रहे हैं।
तो युग ऋषि ने कहा है कि सिर्फ नौकरी के लिए हमारी पोस्टिंग नहीं हो जाती है, महाकाल कुछ और चाहता। ये तो माध्यम था, एक बहाना था, किसी बहाने वहां पर गए। तो इकोनॉमिक दिशा में हम गाइड करने गए हैं, साइंस के दिशा में गाइड करने, तो आध्यात्मिक दिशा भी तो जानी है। और वो दर्शन यहाँ पर हुआ है, बचपन से हमारे सब संस्कार हैं, तो दोहरा काम वहां पर करनी है। और वहां पर सिर्फ एक विकास व्यवस्था चल रही तो है, लेकिन एक सुनापन जो है अध्यात्म का, और यहाँ की घुट्टी नहीं है। इसलिए यह व्यवस्था पूरे विश्व में माइग्रेट होनी चाहिए और आदान प्रदान का क्रम चलना चाहिए। इसी तरीके से मजहबों में भी आदान प्रदान का क्रम चलना चाहिए। एक बार हमें याद है कि 86 के क्रम में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, 108 कुंजीय गायत्री महायज्ञ एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, तो सारे मजहबों के उसमें प्रतिनिधि आते थे, एक साथ हम लोग बैठते थे। मौलवी भी हैं उसमें, पादरी भी बैठा करते थे, और इधर जाके सिख गुरु ग्रंथ साहब के भी उनके आते थे। और सब लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों में जो ग्लोबल बात जो कही गई है और ह्यूमैनिटी की जो बात कही, सिर्फ उतने को टच करके लिए बातें थी। तो उस समय लग रहा था कि यह बात बनती है। तो हर स्तर पर यह मिलन, विलयन, विसर्जन की प्रक्रिया होनी चाहिए, यह बात तभी जाकर के एक भाषा कहा गई। लेकिन एक इसमें एक और जो बात लिखी है गुरुदेव ने, एक भाषा होगी, एक विश्व संस्कृति होगा, एक भाषा होगी, तो लोगों का फिर भ्रम होने लगा था पूज्य गुरुदेव के समय में। वो भाषा संस्कृत होगी कि हिंदी होगी कि अंग्रेजी होगी, कि सब अपने अपने, कितने लोग जो अंग्रेजी में जानते रहते थे कि हमको क्या होगा, कैसे होगी। तो पूज्य गुरुदेव मुस्कुराए थे और हंसे भी थे कि बेटे वो भाषा की इस भाषाओं की बात नहीं होती है। भाषा होगी वो भाषा प्रेम की होगी, बस आत्मीयता की ही भाषा होती है। क्योंकि पौधे अंग्रेजी न जानते हैं, ना हिंदी जानते हैं, ना आपको फारसी जानते हैं, पौधे कैसे बात करेंगे, कुत्ते कैसे बात करेंगे। तो आत्मीयता की एक भाषा होती है, आत्मीयता का फैलाना, आत्मीयता की खेती करना, आत्मीयता का विस्तार करना, ही इसी परंपरा है। और उस हालत में आप एक आंसू कमाते हैं, एक भाव संवेदना पूरे विश्व हिला के रख सकती है, वो भाषा भारतीय दर्शन की भाषा है। इस तरीके से बात थी। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए क्या आया हुआ है। उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है, लिंक भेज दिया है कि मतलब जो। हाँ अच्छा जी, धन्यवाद जी। हाँ, तो और भी कहीं ऐसे प्रयास चल रहे हों या आप कहीं जाते हो, देखिए यहाँ पर गए रोड पर कितना अच्छा बन गया है कि पंचकोश रिसर्च सेल बोस्टन में भी काम कर रहा है। वहाँ पर भारत के विभिन्न अलग अलग स्टेट्स में भी इस तरीके के योद्धा तैयार हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको आते रहेंगे। एक प्रसन्नता बन रही है, एक आशा भी दिख रही है कि वहाँ के लोगों को उनकी भाषा में जाकर के क्लासेज ले रहे हैं और समझा रहे हैं, और यह एक अच्छा एक संभावना दिखने पड़ा। ठीक है डॉक्टर, इसके सेक्रेटरी डॉक्टर युगांधर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हैदराबाद से। हाँ जी, अच्छा एक और भी बात होता है। गुड। यहाँ पुणे महाराष्ट्र में जो अपने पंचकोश सेल के हैं ऋषि आचार्य जी, वो भी देखिए वहाँ पर वो इनामदार उसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कॉलेज में रहते हुए उसके प्रिंसिपल हैं। और जब बात आती है तो कुरान का भी इनकी जानकारी है और भारतीय दर्शन की भी अगाध जानकारी है, और दोनों का समन्वितकरण करते हैं अपनी मेरिट के बल पर कि उन लोग प्रतिभा उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए कितना स्नेह भाईचारा जैसे बात बन रही है, तो ये बहुत है। देखिए ऋषि आचार्य जी, हाँ कुछ अभी हैं क्या स्क्रीन पर कहीं? ऋषि आचार्य जी हैं तो उनको हम चाहेंगे कि आ सकते हैं। इसमें लिख रहे हैं तो लिख रही है कि एवरी, देखिए क्या लिखे हैं इसमें, इनका जो आया हुआ है चैट उसको पढ़िए। तो ऋषि आचार्य प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, अभी मतलब कुछ सेंटेंस अभी नहीं है। तो बाबूजी अभी नहीं है कहीं। बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो बॉस्टन का ग्रुप है, जो हम लोगों का योगा और जो एजुकेशन पे चल रहा है, हाँ अभी मतलब धीरे धीरे इतने लोग अभी मतलब उसको इंटरेस्टेड हुए, और मतलब काफी जैसे डजन मैटर कि कौन कहाँ से है, इंग्लिशी है कि हिंदी है, मतलब मेरा कहने वाला अंग्रेज है कि मतलब इंडियन है कि अमेरिकन है, और किसी कहीं का। यहाँ पे तो लोग ग्लोबल सभी कंट्रीज के लोग रहते हैं, तो सभी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। हाँ, और जब आपका जब नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे सेशन बॉस्टन में, तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। लगभग 3-4 कंट्री लोगों से, मतलब 5-6 कंट्री के लोग होंगे जो उसमें मतलब काफी इंटरेस्टेड, जो अटेंड नहीं कर पाते हैं फिर भी वो लोग टच में रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो योगा हुआ चाहे मेडिटेशन हुआ, दे आर वेरी इंटरेस्टेड।
एंड दे लाइक इट, यू नो। तो उनको हम आपके वीडियोस और जो मतलब उनको वीडियोस भेजते हैं, और वो लोग बाद में उसको, चूंकि आपका वीडियो हिंदी में है तो उसको फिर बाद में हमको उन लोगों को ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते हैं। उसके बाद वो लोग मतलब काफी वो हुए, प्रभावित हुए कि इस तरह की एजुकेशन को ऑल ओवर वर्ल्ड जो है मतलब इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत ही अच्छा और हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। तो आई होप कि नेक्स्ट विजिट में आपकी जो इस साल की है उसमें आपको बहुत लोगों के दर्शन मिलेंगे और बाकी सब भी अच्छा जाएगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी जो वहाँ पर भारतीयों लोगों का भी जो अपने ये विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाएं थी, वो भी आपस में घुल-मिल नहीं रहते। साईं का एक अलग चल रहा था, आर्य समाज का एक अलग चल रहा था, उधर क्रिया जो के अलग चल रहे थे, गायत्री परिवार का अलग टीम, सब अपने अपने टीम में अपने रूम में खाली खिचड़ी पका रहे थे। हम गए तो सबके बीच में कार्यक्रम दिए, सबके घरों में गए, उनके यहाँ रखा। देखिए सब आपस में मिलकर कितना शानदार काम कर रहे हैं। जी बाबू जी। तो ये योग ऋषि के दूत बन करके हमें पूरे विश्व में जानी है। और एकीकरण समन्वय को ही साधना कहते हैं। इसी आधार पर शक्ति और शिव की साधना बनती है। एक और भी बात, वहाँ पर कैलिफोर्निया में वहाँ की यूनिवर्सिटी के आए थे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उनको स्प्रेडशीट पर आ रहा था ये जो बुद्धत्व है, इस बुद्धत्व के लिए हर व्यक्ति पा सकता है क्या? हमने कहा बिल्कुल ओके। उन पर 2-2.5 घंटे बातचीत हुई थी वहाँ के जो अमेरिकन थे, और उस पर रिसर्च कर रहे थे कि बिल्कुल संभव है, और ये भारतीय शैली में हर व्यक्ति संभव है, बालक भी कर सकता है। तब पंचकोश पर काफी उन्होंने इसको बहुत रुचि पूर्वक इसको स्टडी किया, और अभी इस पर रिसर्च के लिए गवर्नमेंट भी कुछ एक्ट देना चाहती है कि पंचकोश पर शोध किए जाए, यानी तेजी से यह युग ऋषि की महाकाल की विद्या जो संजीवनी विद्या है फैल रही है। अच्छा, स्क्रीन पर वो है क्या? देखे तो विस्कॉन्सिन से रीता दी है क्या? रीता जी आप हो तो हैंड रेज करें। वहां पर आप कैसे भारतीय दर्शन को किस तरीके से टच करती हैं वहां पर? अच्छा, वहाँ ओहायो, तो अब देखिए यहाँ पर कैसे बात बनती है। कोई और लोग अपना मैसेज दे सकते हैं वहां पर। वहाँ दिन्नू दी हैं क्या जॉर्जिया से? वहाँ नेपाल वगैरह के भी लोग हैं, और वहाँ पर ही लोग या हांगकांग से अपनाती हैं। तो किस तरीके से भारतीय दर्शन को टच करती हैं वहाँ पर? जी आज बाबू जी, आज की कक्षा में एक लोग हम लोगों के जो योगा क्लास था, योगा एंड मेडिटेशन, एक फैमिली नेपाल जुड़ी, उनको काफी अच्छा लगा। देखिए इसमें रीता सिंह दीदी को अनम्यूट करें, आया है मैसेज। रीता सिंह दी हैं RIT, रीता सिंह विस्कॉन्सिन। हैंड रेज करेंगे दी तो आप दिखाई पड़ जाएंगे। रीता जी आप अपना, आपको हमने अनम्यूट कर दिया तो आप अपना बोल सकती हैं। हाँ, स्क्रीन पर आए। और दीदी आपको प्रणाम। हाँ, उनको स्क्रीन पर लाइए। हेलो हेलो रीता जी, प्रणाम बाबू। उनको स्क्रीन पर आप लाए, रीता दी को स्क्रीन पर लाइए। जी बाबू। बहुत वहाँ ठंड है। टेम्परेचर कितना है अभी अशोक जी? आज का टेम्परेचर बाबू जी 0 है। तो बिलो है, माइनस में सब चल रहे हैं जी। ठीक है, फिर भी हम लोग क्लास में हैं ऑनलाइन साथ में जी। रीता जी को आप भी करें। आपको पुरुषोत्तम जी को म्यूट करिए। हाँ देखिए, पुरुषोत्तम जी को म्यूट हुई है, आवाज आ रही है तो करिए। जिनका भी आ रहा हो अपने भारत के विभिन्न कोने से अपने बताएं कि वहां पर क्या कुछ चला रहा है एक दूसरे में म्यूचुअल होने के लिए। और विश्व परिवार में पौधे भी आते हैं तो इनके भी होती है सब कुछ। तो उनको पुरुषोत्तम जी कहा जी ठीक है। अदिता दी प्रणाम। वाह, देखिए तो आप बताएंगे कि वहां पर विस्कॉन्सिन में आप कैसे भारतीय दर्शन को टच करती हैं जी। प्रणाम बाबूजी।
हमारा यही योगदान ये है कि हम लोगों ने मिल करके एक छोटा सा टेम्पल बनाया है और यहाँ पे हम जो है बच्चों को योगा मेडिटेशन के क्लासेस देते हैं और इससे जो है बच्चों को बहुत फायदा होता है। छोटे बच्चे हैं लेकिन उनके माँ बाप बताते हैं कि आके हमें बताते हैं कि उनके बच्चे जो है कैसे घर में डिसिप्लिन रहते हैं, कैसे उछल कूद मचाया करते थे, लेकिन अब जो है थोड़े से शांत होने लगे हैं, उनका फोकस भी स्टडी में काफी होता है, तो काफी उनको हेल्प करता है। और हमने बच्चों में भी देखा है कि ऐसे लगता है ना कि छोटे बच्चे शायद ज्यादा मेडिटेशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब वो एक बार करना शुरू करते हैं तो वो बच्चे खुद हमें कहते हैं कि वी फील पीसफुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम जो है लोगों के घरों में जाके गायत्री मंत्र की का वो मतलब हवन वगैरह भी कराते हैं, लेकिन वो हवन तो एकमात्र जो है साधन है जो कि, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के विचारों को फैलाते हैं जिससे कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और कई बार तो कई घरों में ऐसे गए जैसे कि उनके मतलब घर के लोग जो है हस्बैंड जो है वो उन्होंने कभी पूजा में बैठे नहीं थे, लेकिन जब वो हमारा एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, क्यों जो गुरुदेव के विचारों को ही हम पहुंचाते हैं कि कैसे हमको जीवन अपना जीना चाहिए, मतलब हिंदू धर्म का मतलब रियल मीनिंग क्या है, मतलब कि वो बस पूजा पाठ और फूल अक्षत चढ़ाना नहीं है, मतलब कि जीवन जीने की कला क्या है, ये मेरा बताने का ज्यादा मेरा मकसद होता है लोगों को। तो इस तरह से लोग जो है लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं, बोलते हैं कि ये तो हमको किसी पंडित ने बताया नहीं, इतने पूजा हमने करवाए और इतनी पूजा में हम गए भी, लेकिन कोई हमें इस तरह की बातें नहीं बताता है। एक जगह तो हमें मतलब ज्यादा ही ताजुब हुआ कि एक डॉक्टर हैं, तो उनके घर में जब गए तो उन्होंने कहा कि हम पूजा वूजा में विश्वास नहीं करते, हम बस आप लोगों की मदद कर देंगे। और आप अपनी वाइफ को बैठा दिया पूजा में कि हम बस आप लोग ऊपर से जो कुछ भी जरूरत होगा हम मदद करेंगे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं। तो हमने कहा बस एक आचमन, बस पवित्रीकरण का आचमन लेकर के आप चले जाइए। फिर जब हमने उसके पवित्रीकरण के बारे में बताया तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, वो थोड़े और बैठ गए। फिर हमने एक एक करके एक एक संस्कारों को हम कराते गए और उसका मतलब जब समझाते गए तो वो इतने इम्प्रेस हुए कि मतलब बोले कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी पूजा पे नहीं बैठे थे और आज हम पहली बार बैठे हैं और हमको इतना अच्छा लग रहा है। और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मेक श्योर कि अब रीता दीदी से साल में एक बार हमें पूजा करवाना है और हम पूरी फैमिली के सहित यहाँ बैठेंगे। तो हमने हमने जो ये जो है हवन जो है उसको तो हमने एक माध्यम बनाया हुआ है, लेकिन उस माध्यम से गुरुदेव के विचारों को, और आजकल जो है हमने जो है जो पंचकोशी साधना जो है, जो कि हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद है, लेकिन आपके विचारों को पढ़ के और सुन के अब उस पे भी हम थोड़े थोड़े से लोगों को बताना शुरू किए हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा ग्रुप यहाँ बनाए जो कि हम आपके लेक्चर्स को सुने। और वीकली जो है वो जो आपका वीकली प्रोग्राम जो हम लोगों का होता है ये इसमें जो है इसके कुछ कुछ जो लेक्चर जो बहुत क्लियर होते हैं हम अपने फ्रेंड्स ग्रुप को भेजते भी रहते हैं और उसका मतलब भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यही मेरी छोटा सा मतलब छोटी सी योगदान है इसमें। तो मतलब बस पूरी कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब मैसेज को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें और आपके मतलब बाबूजी के विचारों को और मतलब और भी जो यहाँ पे भाई लोग हैं जो वो लोग बताते हैं उनके विचारों को हम लोगों तक पहुंचाएं, गुरुदेव के विचारों को हम पहुंचाएं। धन्यवाद बाबूजी। जी, और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स के बीच में एक हुई थी कॉन्फ्रेंस वार्ता के साथ, तो उनके रिस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग भी अपने कम्युनिटी के थे। जी, अभी वर्तमान में उनके वो लोग भी बहुत बहुत वो आपके बारे में हमेशा बात करते हैं, बोलते हैं कि इतना ज्यादा मतलब कि ज्ञान, मतलब कि उनको कुछ नहीं पता था कि मतलब यह पंचकोशी साधना क्या होती है और मेडिटेशन और प्राणायाम से शरीर को कितना लाभ हो सकता है। तो वो लोग कुछ लोग तो बहुत ही प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और वो पूछते हैं कि आप फिर आगे कब आएंगे, वो फिर से दोबारा आपसे मतलब सीखने की मतलब और आगे भी जानने के लिए वो पूरे उत्सुक हैं।
जी धन्यवाद दीदी, और आपको स्क्रीन पर आई हम लोग का आपके बीच में पा करके अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि जो गुरुदेव का सपना है तो वो सामने दिखाई पड़ रहा है 20 प्रकार प्रकरण में। जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद और बाबूजी। जी देखिए, मौर्य जी, पुरुषोत्तम मौर्य जी का कुछ आ रहा है क्या अंकुर जी? अंकुर भैया देखिए किन लोगों का हैंड रेज है तो उनको हम लेके करते हैं। बाबूजी किसी और का हैंड रेज तो नहीं है, हाँ बट तो मेरा रिक्वेस्ट, अगर किसी कोई लोग अपना कोई भैया जी सुभाषचंद्र सिंह जी का है क्या? पर सुभाषचंद्र सिंह जी का है, क्योंकि एशिया स्तर के चलाते हैं इंस्टीट्यूशन, तो उसमें आते होंगे विभिन्न कंट्रीज के, तो किस तरह से उनको टच मिलता है? तो देखिए, तो यहाँ पर सुभाषचंद्र सिंह जी हैं स्क्रीन पर। बाबूजी, या और कोई भी अपने मन से कोई कहना चाहते हो तो उधर बोल सकते हैं। वो किरण दी हैं क्या? जी किरण दी है। हाँ तो अपना अनुभव कुछ बताएं। इससे आप यहाँ भारत में भी रही हैं और यहाँ भी आपने रेडियो स्टेशन में अच्छा प्रयोगोपनिषद का किया था, कर रही थी, तो इस तरीके से आप यहाँ के भारतीय दर्शन में वहाँ में आप क्या कुछ अंतर पा रही? यहाँ से गए हैं, पूरा फैमिली वहाँ पर चले गए, और यहाँ भी आपका बहुत अग्रणी भूमिका में रह रही थी जब यहाँ पर फरीदाबाद में। तो जी कुछ किरण दी अपना अनुभव बताएं विश्व परिवार के प्रकरण में। जी बाबूजी, आपको, क्योंकि फरीदाबाद में मैं बहुत सारा काम कर रही थी और प्रज्ञा पुराण के ऊपर, प्रज्ञा उपनिषद के ऊपर जो हम लोग काफी काम कर रहे थे हर घर घर में, क्योंकि प्रज्ञा पुराण मेरा प्रेरणाप्रद था। उसी ने मुझे जैसे मानव बनाया, इंसान बनाया, तो उसके माध्यम से बहुत सारा काम किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद जहाँ पर मैं रहती हूँ वहां पर थोड़ी ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैं यहाँ पर कुछ कर रही हूँ, लेकिन हाँ मानसिक रूप से मैं जरूर करती हूँ। और आपने एक बार बोला था, मैंने बोला मैं बाबूजी मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो आपने बोला कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है और सबसे पहले ज्ञानवान बनो। तो उस क्षेत्र में बाबूजी कर रही हूँ। नित्य जो है स्वाध्याय करती हूँ, उपनिषद जो कि मैं पढ़ना, मुझे एक अक्षर भी समझ नहीं आता था, तो आपकी प्रेरणा से वो सब समझ आने लगा। तो हाँ, इस समय अपना सुधार कर रही हूँ बाबूजी। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती कि हाँ अभी मैं अभी यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही हूँ बाबूजी। रियली सॉरी फॉर दैट। जी बाबूजी। तो प्रज्ञा पुराण जो है जरूर घर घर में पहुंचे और सब लोग उसको पढ़ें, वो बिल्कुल सेंटर टेबल पर रहे। और उसका जो उदाहरण है, कहानियां भी अगर हम पढ़ लेते हैं, तो जैसे आज ही मुझे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मेरे बेटी ने मुझे ऐसे कुछ बोला किसी के लिए, तो प्रज्ञा पुराण की जो छोटी सी कहानी थी मैंने उसको सुनाई, तो उसके बाद वो उसके अंदर सेटिस्फेक्शन आया कि अरे हाँ मुझे तो ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, मुझे ऐसा ही रहना चाहिए। तो कहानियां जो गुरुदेव ने प्रेरणा के माध्यम से दी, जो उसका टीका, व्याख्या, जो एक एक शब्द को बार बार पढ़कर ही समझ आता है कि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं, तो उसको मैं बार बार पढ़ती हूँ और उसको बिल्कुल समझने की कोशिश करती हूँ। और मुझे मालूम है कि मैं ऐसी उम्मीद भी करती हूँ कि मुझे पहले जैसे ज्ञानवान बनाकर ही गुरुदेव आगे मुझसे काम लेंगे, तो थोड़ा सा मिस भी करती हूँ बाबूजी यहाँ पर मैं। जी बाबूजी। बाबूजी म्यूट हो गए हैं शायद। बाबूजी को मैंने अनम्यूट कर दिया। बाबूजी हाँ जी धन्यवाद। अब समापन की तरफ आए तो इसके उपसंहार में हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रज्ञोपनिषद को जो गुरुदेव ने लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने आकर धरती पर नया क्या दिया। अन्य साधुओं की तरह आए, अपना स्पीच दिया, आसन भाषण दिए गए, तो जिन्होंने नया जो दिया है तो ये दिया है जो बुद्ध का ये उत्तरार्ध है। प्रज्ञा अभियान भगवान बुद्ध का उत्तरार्ध है, ये प्रज्ञा अवतार बुद्ध का उत्तरार्ध है। बुद्धम शरणम गच्छामि इन्होंने बौद्धिक क्रांति के रूप में लिया, धम्मम शरणम गच्छामि इन्होंने नैतिक क्रांति के रूप में आगे बढ़ाया, और संघम शरणम गच्छामि सामाजिक क्रांति के रूप में। जो और 4 कलाएं विशेष थी जहां पर दिक्कत पड़ रही थी भारतीय दर्शन का जो और पूरे विश्व का जो मार्गदर्शक संविधान है वेद को इन्होंने घर घर भी पहुंचाया। और वेद का जो वेद माता है गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाना, जन जन तक बताना, इस दुर्लभ और ऋषि परंपराओं का एक जितना भी फैकल्टीज है उनको फिर से पुनर्जीवित करना, देव संस्कृति पुनरुत्थान का रचनात्मक कार्यक्रम है, ऋषि परंपराओं का पुनर्जीवन। ये एक शानदार कार्य है जो कि अन्य लोग ने इसको अभी के समय में या युग की मांग थी, तो ये इन्होंने का प्रकरण किया है। और इसका और भी
यज्ञ विज्ञान भी हो गया था किसी खास जाति खास कैडर खासी लोग करने का। इन्होंने यज्ञ को यज्ञोपैथिक रूप में मिलाया जो याज्ञवल्क्य परंपरा का यह था। यज्ञ से शारीरिक मानसिक रोगों का उपचार तो होता ही होता है, साथ ही साथ में यज्ञ से जो आत्मिक विकास की जो प्रक्रिया बताई गई थी वह भी इसमें साथ में मंत्रों के साथ में जो उसका दर्शन है, फिलोसफी है, प्रमाण शक्ति है, बलीकरण है, आयातात्मा शक्ति है, इन्होंने यज्ञ को बिल्कुल व्यवहारिक किया और अनपढ़ लोगों के बीच में ही पहुंचाया कि हर कोई कर सकता है, करा सकता है। देखें तो जो यज्ञ और गायत्री जो देश संस्कृति के माता पिता थे, यह विद्या गुप्त लुप्त हो गई थी, इसको जन जन तक दोनों पहुंचाया। तो दो काम थे नहीं इन्होंने दिए। एक तीसरा उन्होंने एक और काम किया कि बुद्ध के लेवल तक, बौद्धिक लेवल तक अपनी पहुंच बनाई थी। उनकी आगे की जो यात्राएं थी तो बाद के अवतार परंपरा के लिए छोड़ी जाती है कुछ, उसमें इन्होंने पूर्णता तक ले जाकर किया कि आत्मा वारि ज्ञातव्य, मैं क्या हूँ, फर्स्ट बुक है कि अपने आप के बारे में जानना, मैं आत्मा हूँ, इस तरीके से बात थी। तो आत्मा के लिए परिष्कार के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए पैकेज दिया जो कि सर्व सुलभ है, हानि रहित है, गायत्री पंचकोशी साधना उच्च स्तरीय। तो ये जन जन के लिए एक पैकेज मिला है। और एक अंतिम जो बात थी वैज्ञानिक अध्यात्म, दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे थे, यही शिव और शक्ति का मिलन की व्यवस्था थी। और वेद के अनुकूल आचरण है, विद्यांच अविद्यांच जस तद्वेद उभयगम स्व अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। तो ठीक है, आज के संदेश कहीं पर विराम दिया जाए और विश्व प्रकरण में शांति पाठ किया जा रहा है। समय हो गया है। और विराम के पहले एक क्वेश्चन था कुंदन सिंह का। हाँ जी, उन्होंने लिखा है कि बाबूजी कल जब मैं गायत्री मंत्र जप कर रहा था मुझे एक जोर का झटका लगा जैसे किसी बिजली का करंट लगने पर होता है और पूरी बॉडी हिलने लगा जी। तो इसमें क्या प्रकाश डालेंगे आप? हाँ जी, इसमें अनेकों हम जहाँ भी जा रहे हैं क्षेत्र में तो तरह तरह की अनुभूतियां लोग अपने बता रहे हैं। प्राणायाम के क्रम में, मेडिटेशन क्रम में किन्हीं किन्हीं को हो रहा है कि जितने भी चक्राज हैं उसमें से स्पंदन आने शुरू हो जाते हैं, किन्हीं को ऊपर से नीचे का क्रम जाता है, तो किसी को बहुत बिजली की तरह पड़ रहे हैं। तो ये जो आ रहे हैं तरह तरह के लोग, तो एक बार पूज्य गुरुदेव को बात याद आ रही है, उन्होंने कहा कि सारे ऋषि आत्माएं धरती पर आ चुकी हैं और वो अपने रूप में है। इस तरीके से सभी को ये काम करने हैं, क्योंकि अभी ईश्वरीय चेतना उसको किसी न किसी तरीके से दबा कर रखती है कि प्रकट होकर के वो अभियान न छोड़ दें। तो ये सब प्राणों की हलचल हैं और अपने साधना क्रम को साक्षी भाव से बनाए रखें। अब अगले क्रम में जब आएगा मेडिटेशन, हम लोग मनोमय कोष में ले आएंगे या प्राण की हलचलें हैं, तो उसमें दिशा नहीं मिल पा रही है, इस तरीके से वो विस्फोटक लगता है। लेकिन एक बार जब फूटता है तो उसका भूमिका खत्म हो जाती है, दोबारा वो भूमिका फिर नहीं आती, क्योंकि उसी क्रम से वो फूटते हैं। हर एक चक्रों को हम बताएंगे कि वहाँ के चक्रों की जो स्पंदन है वो हीटेड है, कैसे उसको हम रिलैक्स करते हैं, उसको इनफाइनाइट कैसे बनाते हैं, क्योंकि सारे चक्र 7 लोकों से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको कैसे उसके आयाम को बढ़ाते हैं, कुलनेस आ जाएगा वो और बिल्कुल ही दिशा मिल जाएगी। जी धन्यवाद कुंदन जी। और अगले सत्रों में कभी आप आएंगे यहाँ प्रैक्टिकल में तो उनकी क्लासेज हम लेंगे। जी धन्यवाद। शांति पाठ। जी बाबू जी। शांति शांति शांति। समाप्ति।